Very good morning, students. How are you? Welcome to the class once again. So, this is the class of mathematics of class 8, right? Today we will discuss the mathematics of class 8, the name of the topic, which is chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. So, students, in this chapter, we will mostly learn about the quadrilaterals. And what are the quadrilaterals? Basically, we can say quadrilaterals are the shapes or the geometry which is made up of the four sides, right? If we join the four lines continuously on the plane, right, without picking the pen, if we draw any geometry which consists of the four sides, that exactly known as the quadrilaterals, right? So we will learn about the quadrilateral. So basically quadrilateral we can also call it as the polygon. तो पॉलीगॉन क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे. What are the quadrilaterals and the different types of the quadrilateral we will also learn in this topic, right? So it is very interesting, right? So in this topic we will learn about the quadrilateral and their properties. Just like quadrilateral, we will learn the parallelogram, we will learn the square, rectangle, kite, rhombus. These are the types of the quadrilateral we will learn into that, and we will also see the property of the quadrilaterals, right? So let's start the understanding quadrilateral. So first of all, we can see on the screen there is the introduction, and in the introduction you can see a table which is given figure and the type. Here you can see that in this table on the left hand side, right? On the left hand side you will have the different figures, and here you have the different information about those shapes, right? These are the types of the shapes. So if you just understand this table, so in the number 1 you can see that there is a there are two lines are joining with each other, right, at a particular point. So suppose I want to show you that यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये जो पहला जो फिगर हमको दिख रहा है, right, this is the first figure, right? यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो पहला जो फिगर है वो फिगर जो है हमारा, यहाँ पर मैं इसको पेन से यहाँ पर आपको डिनोट करना चाहूँगा. दिस इज़ द फर्स्ट फिगर, राइट? ये फर्स्ट फिगर में अगर हम देखेंगे, सो इट इज़ जस्ट, इट इज़ नॉट द क्लोज शेप, इट इज़ द ओपन शेप एंड विच कंसिस्ट द टू लाइन लाइक दिस. इसको मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ इस तरीके से. सो यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, एंड दे आर जॉइनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पर ये दोनों लाइन्स आके जुड़ रही हैं. सो यू कैन सी दैट दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर. फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड इट इज़ ओपन, राइट? सो इट इज़ नॉट द क्लोज कर्व, इट इज़ जस्ट द शेप, राइट? ये एक तरह का शेप है, राइट, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज द कर्व विच इज़ नॉट क्लोज्ड, राइट? ऑन द अदर हैंड द सेकंड फिगर यू कैन सी दैट, है ना, यहाँ पर आप सेकंड फिगर देख सकते हैं. दिस इज द सेकंड फिगर, एंड इन दिस फिगर यू कैन सी दैट देर इज अ सर्कल, but it is not the simple circle. So here in this shape you can see that this shape is closed over here, that is the particular point, and it is the circle but not the perfect circle, but it is the closed shape, right? And in the figure number 3 you can see that there is a circle, right? It is the closed curve and it is the simple closed curve. इसको हम यहाँ पर simple closed curve भी बोल सकते हैं, right? तो ये भी एक तरह की ज्योमेट्री है. इट इज़ ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द फिगर, राइट? एंड द लास्ट वन वी कैन से दैट, है ना, इट इज़ यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं देर इज़ द टू ट्रायंगल्स, राइट? एंड इस जो फिगर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो चार फिगर हमने देखे हैं, ये फिगर्स जो है इनको बिना हमने पेंसिल उठाए इसको हमने बनाया है. जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्राई करें इस शेप को बनाना, अगर हम शुरू करें तो हम इस पॉइंट से इसको विदाउट पिकिंग अवर पेन, विदाउट पिकिंग अवर हैंड, वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ द शेप. यहाँ पर हम इस शेप को बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, राइट? तो दीज आर द स्पेशल कर्व्स, एंड इस कर्व्स में आपने देखा होगा कुछ कर्व जो है वो ओपन है और कुछ कर्व्स जो हैं वो कैसे हैं, क्लोज है, राइट? तो ये यहाँ पर इस तरह के कर्व हम देख सकते हैं. सो वी कैन मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कर्व. सो वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ज्योमेट्री ओवर हियर. पर्टिकुलरली इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द पॉलीगॉन्स, राइट? आवर टॉपिक इज पॉलीगॉन. यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसको आपको पॉलीगॉन को यहाँ पर समझना है. पॉलीगॉन्स क्या होता है, राइट? तो पॉलीगॉन का मतलब होता है पॉली. पॉली मीन्स मेनी, मेनी साइड्स, एंड गॉन्स का मतलब होता है साइड्स,
right? So the geometry which is made up of the many sides, as you can see on the screen, right? यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आप ये जो फिगर्स है यहाँ पर, इन तीनों फिगर्स को अगर आप देखें, सो दे आर मेड अप ऑफ द वन लाइन सेगमेंट. जैसे कि अगर मैं इसको बनाना शुरू करूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है, राइट? सो विदाउट पिकिंग द पेन और विदाउट पिकिंग द हैंड वी कैन मेक द डिफरेंट शेप बाय द वन लाइन, राइट? दे आर नोन एज द पॉलीगॉन, उनको पॉलीगॉन कहा जाता है. तो यहाँ पर आप इसके डेफिनेशन भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप इसके डेफिनेशन देख सकते हैं. अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन. एंड अनदर शेप यू कैन सी हियर, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो शेप है जिसके हम बारे में बात करें, इट इज़ लाइक अ रेक्टेंगल शेप. इसको भी हम विदाउट पिकिंग द हैंड हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द शेप, these are known as the polygon, right? Another type of polygon you can see on the screen, दूसरे टाइप का यहाँ पर पॉलीगॉन हम देख सकते हैं, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन, राइट? तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, these shapes they are not polygons and these are the polygons, right? Because they are different, right? तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है? दोनों में अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पर ये जो सेकंड फिगर में जो हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर जनरली हम देखेंगे, सो दे आर ऑल्सो द कोर क्लोज कर्व्स एंड दे आर ऑल्सो द ओपन कर्व. जस्ट लाइक इफ़ यू सी द फर्स्ट फिगर, इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको भी बिना हैंड पिक किए हम इस तरीके से बना सकते हैं. बट यू कैन सी दैट दिस साइड इज़ ओपन, ये जो साइड है ये ओपन है, इसलिए हम इसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, राइट? सो इन फिगर्स को देखने के बाद हमको ये भी समझ में आता है कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ द वन लाइन, राइट? यहाँ पर एक सिंगल लाइन से ये बने हुए नहीं हैं, राइट? और यहाँ पर दूसरा भी फिगर अगर हम देखें, ये वाला फिगर अगर हम देखें, सो दैट इज़ ऑल्सो द ओपन. यू कैन सी दिस एंड इज़ नॉट क्लोज्ड एंड दिस एंड इज़ ऑल्सो द ओपन क्लोज. सो दे आर नॉट द पॉलीगॉन्स. तो इस तरह के शेप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉलीगॉन्स नहीं है, और पहले जो हमने देखे थे वो सारे के सारे जो हैं वो पॉलीगॉन्स है, राइट? सो स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन क्या होते हैं वो अब आप समझ गए होंगे. नाउ वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन. सो हियर इन दिस टेबल यू कैन सी देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन. सो अवर फर्स्ट पॉलीगॉन विच इज़ नोन एज द ट्रायंगल, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल में हमारा जो पहला पॉलीगॉन है वो है ट्रायंगल, विच इज़ मेड अप ऑफ द थ्री साइड्स एंड द शेप इज़ लाइक दिस. ट्रायंगल को भी हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. अनदर वन इज़ क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारे टॉपिक में है. क्वाड्री का मतलब होता है फोर साइड्स, राइट? क्वाड्री का मतलब होता है फोर साइड. सो यू कैन सी दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, राइट? अनदर पॉलीगॉन यहाँ पर हम देखेंगे, दूसरे पॉलीगॉन है द पॉलीगॉन विच कंसिस्ट ऑफ द फाइव साइड्स. यहाँ पर हम इसको पेंटागॉन बोलते हैं, बिकॉज पेंटा मीनिंग दैट इज़ फाइव, राइट? सो दिस इज द पेंटागॉन, राइट? इसका फिगर आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज द पेंटागॉन, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. पेंटागॉन इट कंसिस्ट ऑफ द फाइव साइड्स, राइट? दिस इज द हेक्सागॉन. हेक्सा मीन्स होता है सिक्स साइड्स, so it consists of the six sides, right? That is the heptagon. Hepta means seven, right? So this polygon which is made up of the seven sides, right? Seven sides का बना है. And you can see as well as the octagon, nonagon and the decagon, right? तो जितनी sides हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके polygon मिलते जाएंगे. So you can see that if you have the n sides, right? If you have the n side of the polygon, so you will get the n-gon. एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉलीगॉन, राइट? तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो उतने ही तरह के हमको यहाँ पर पॉलीगॉन्स मिलते चले जाएंगे. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पॉलीगॉन्स वी कम टू द टॉपिक दैट इज़ द डायगोनल. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल, राइट? दिस इज द सेकंड टर्म यू नीड टू लर्न, राइट? हम यहाँ पर इसको डायगोनल देख रहे हैं. डायगोनल किस तरीके के होते हैं? So you can see diagonal. So first of all we will see the definition of the diagonal. Diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of the polygon. Vertices क्या होते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं, because vertices that is the very important meaning. Vertices means if you observe this polygon, right? So this is the quadrilateral because it consists of the 1, 2, 3 and 4 sides, right? PQ, that is the first side. This is the PQ and this is the QR and RS and the SP. These are the four side which is made up of this polygon, right? And यहाँ पर अगर हम देखेंगे the point P, point Q, point R, point S, these are the vertices of the polygon where the two sides are coming and they are meeting at a point. यहाँ पर आप देख रहे हैं दो sides साथ में आके मिलती है, right? If you see the point P, if you see the point P, right here, so you can then PS and PQ are meeting at the point P.
and if you see the Q, so PQ and QR are meeting. So similarly the point S and point R, they are also the vertices of this polygon, and this polygon is known as the rectangle. So rectangle is made up of the four sides, so it has the four vertices. So what are the diagonals? So we were discussing about the diagonals. So diagonals generally यहाँ पर हमको एक word और दिख रहा है, that is the non consecutive. अगर हम इसको समझ जाएं तो ये definition हमें बहुत ही clear हो जाएगी, right? Non consecutive का मतलब होता है the point which do not come in the one line. So suppose if you see that the point P, point Q, point R and point S. So in this rectangle we can say that point P is coming first, and after that Q and the R and the S. But here we the diagonal, suppose we have the diagonal PR and the diagonal SQ. So here you can see that the point P and point R, these are the non consecutive point which are not coming one after one, राइट एक के बाद एक आने वाले ये पॉइंट नहीं है इसमें, है ना, बिकॉज P के बाद Q आता है और Q के बाद R आता है. सो हियर यू कैन से दैट वी आर डायरेक्टली जॉइनिंग द पॉइंट P एंड R, राइट. हम या जब हम पी आर जब डायगोनल बनाते हैं तो हम P और R, ये जो दोनों नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो पॉइंट है इसको हम जोड़ के बनाते हैं. एज वेल एज यू कैन सी दैट इफ़ वी ड्रॉ द SQ, तो हम यहाँ पर पॉइंट Q यानी कि वर्टाइसेस Q और वर्टेक्स S जो है इसको ज्वाइन करके बनाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर P और R एंड Q एंड S ये दोनों क्या है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस है एक पॉलीगॉन के, और इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, डायगोनल मिलता है. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द डायगोनल. अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन, राइट. उसको हम यहाँ पर डायगोनल बोलते हैं. एज वेल एज यू कैन सी द फिगर 3.1 हियर. यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं A, B, C, D, E. So here you can see this is the first side, second side, third side, fourth side and fifth. So this is the pentagon. We can call it as the pentagon. And pentagon में आप देख सकते हैं यहाँ पर number of diagonal आपको कितने दिख रहे हैं. First of all you can see the AD, that is the first diagonal. Then that is the BD, that is the second diagonal BD. तो यहाँ दो diagonal हो गए. Then EC, that is the third diagonal, and the AC, that is the fourth, and EB. So here you can see that there is the 5 diagonal. So you will have the star shape into that. Here you can see the triangle. So triangle में हम यहाँ पर देखेंगे. So this is also the polygon. So here we can see that there is the 2 diagonal, LN and KM. तो यहाँ पर भी हमको पॉलीगॉन में डायगोनल्स दिख रहे हैं. सो इफ़ वी जॉइन द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और द पॉलीगॉन, वी विल गेट द डायगोनल, राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डायगोनल. सो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डायगोनल, बिकॉज इट इज़ वेरी necessary to understand. Now we see what is the interior and exterior. So on the screen you can see the diagram interior. Interior means the area enclosed under the figure. यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, यानी कोई भी अगर हमारे पास शेप है, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप, राइट. सो दिस इज नॉट द पॉलीगॉन, राइट. बट यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस एरिया, ये जो एरिया है दैट इज द इंटरनल एरिया ऑफ दैट ज्योमेट्री. तो ये इंटरनल कहलाएगा, और एक्सटर्नल का मतलब इस फिगर के बाहर वाला. यू कैन सी दिस इज द शेडेड एरिया, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, राइट. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल. यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमको दिया है उसके हम आगे का देखेंगे. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन. The another topic that we will learn, that is the types of the polygon. तो polygon यहाँ पर दो टाइप के हैं, convex and concave. As you can see on the left hand side you will have, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये सारे आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्केव पॉलीगॉन है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है. सो एज यू कैन सी, पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फिगर को ध्यान से बता देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंसेस है. सपोज इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जांपल अगर ले लें दिस साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी पॉलीगॉन है, हियर यू कैन सी दिस इज द हेक्सागॉन, दिस इज द ट्रेपेजियम, राइट. एंड दिस इज यू कैन सी द 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is the octagon. It is also the quadrilateral. It is also the quadrilateral. So these are the polygons. So suppose if we draw the diagonals into that, so we will have all the diagonals which lies in the internal area of that quadrilateral or the polygons. यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं diagonals बनाता जा रहा हूँ.
I am joining the two non-consecutive points with each other. So you can see that each diagonal into this figure, right? यहाँ पर हम इसको मैं फिर से आपको बना के बताता हूँ diagonals यहाँ पर कैसे बनेंगे. So each and every diagonal which lies interior of the polygon, है ना? This is the simple meaning of the कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर जितने भी डायगोनल्स हम बनाते हैं यानी नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को या वर्टाइसेस को जब हम जोड़ते हैं तो सारे के सारे डायगोनल जो है दैट कम इंटीरियर ऑफ दैट पॉलीगॉन, उसके अंदर वाले भाग में ये पॉलीगॉन आते हैं. कोई भी पॉलीगॉन यहाँ पर कोई भी डायगोनल ऐसा नहीं है जो कि बाहर के तरफ हमको दिखाई दे रहा है, राइट? द नॉट एनी डायगोनल विच कम इन द एक्सटीरियर ऑफ दैट पॉलीगॉन, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. वैसे ही अब हम आते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन पे. तो कॉन्केव पॉलीगॉन में अगर हम डायगोनल्स अगर बनाएंगे, सपोज आई वांट टू ड्रॉ द डायगोनल इन दिस शेप. सो सपोज दिस इज द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट, यहाँ पर मैंने जॉइन कर दिया. सो एज यू कैन सी दैट दिस डायगोनल इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट पॉलीगॉन. बट इफ वी जॉइन दिस टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट, सो दैट इज द एक्सटीरियर. ये जो होगा ये एक्सटीरियर होगा. सपोज इन दिस फिगर यू कैन सी दैट, तो यहाँ पर एक डायगोनल बन सकता है, ठीक है. और हम यहाँ पर यहाँ एक डायगोनल बना सकते हैं, यहाँ भी डायगोनल बना सकते हैं. वी कैन मेक द डायगोनल लाइक दिस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है, ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है वो बाहर के तरफ आ रहा है. दैट इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन. दिस इज द रीज़न वी कैन कॉल इट एज द कॉन्केव पॉलीगॉन. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में यही डिफरेंस होता है. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द एक्सटीरियर डायगोनल, दिस इज ऑल्सो द एक्सटीरियर डायगोनल. सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हमने देखा ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ दैट पॉलीगॉन, and in the concave we have the exterior polygon, right? Exterior diagonal, right? So this is the reason, this is the difference between the convex and concave polygon. So you will also have this type of question in your exercise, differentiate between the concave and convex. तो वहाँ पर आपको different shapes दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा polygon concave है और कौन सा convex है. So this is the basic difference, you can differentiate, right? Now we come to the next topic, that is the regular and irregular पॉलीगॉन. रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, राइट? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन हियर, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ना. एज यू कैन सी हियर, ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ, राइट, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, राइट? इक्वी एंगुलर का मतलब होता है देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट? यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो ऑल द एंगल्स आर इक्वल. और इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, सो ऑल द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट? तो ये मीनिंग जनरली इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल का होता है यहाँ पर. तो एज यू कैन सी दैट हियर, आपको यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दिख रहे हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेंगल, सो हियर यू कैन सी दैट देर आर द थ्री एंगल्स, राइट? सो दे आर इक्वल विथ ईच अदर and you will have the three sides, so they are also the, so this is the equiangular and equilateral. Here in the square you can see each angle, right? 1 2 3 and 4, these four angles are equal and the sides are also equal. In this triangle you can see that, right, not each and every angle, these three angles are not equal to each other and the sides are also different. So this is not the regular polygon. इसको हम यहाँ पर regular polygon नहीं बोलेंगे. Here you can see that all the sides are not equal, right? All the sides are not equal. This side is equal to this and this is equal to this side, right? So it is also, यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों एंगल तो बराबर है, all have the 90 degree angle, बट यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर जो लास्ट दो फिगर है ना, यहाँ पर ये जो दो लास्ट फिगर है, दे आर नॉट द पॉलीगॉन बट दिस टू आर द पॉलीगॉन, राइट? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन. तो यहाँ पर हमने दो क्लासिफिकेशन देखे. इसके पहले हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन की बात की थी, और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. सो आई होप कि इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. सो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर, राइट? सो यहाँ पर भी आप कुछ फिगर देख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर भी कुछ फिगर देख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रेगुलर पॉलीगॉन से. दिस आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. दिस इज द पेंटागन एंड दिस इज द हेक्सागन. ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट दे आर नॉट द रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज all the angles and all the sides are not equal, right? So this is the meaning of the regular and irregular, right? Now we come to the angle sum property, right? The next topic is
एंगल सम प्रॉपर्टी, हियर आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में जब हम 6-7 क्लास में हम ट्रेंगल के बारे में पढ़ रहे थे या क्वाड्रिलेटरल, तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ट्रेंगल पढ़ा है। तो ट्रेंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उस एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर कोई ट्रेंगल होता है, राइट, सपोज कोई ट्रेंगल है, राइट, सपोज दिस इज़ द ट्रेंगल ए बी सी, राइट, ए बी एंड सी, राइट। तो इसके अंदर जनरली ये जो 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो दिस इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेंगल। सो सिमिलरली here we will also see the angle sum property of the polygons or the angle sum property of the quadrilaterals, right? तो ये हमको यहाँ पर सीखना है। So for learning that we have to do the activity which is given in the gray area, right? यहाँ पर जो हमको डार्क एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया में हम देखेंगे, ये जो डार्क एरिया हमको दिख रहा है, इसमें हम इस एक्टिविटी को करेंगे। सो सपोज द फर्स्ट नंबर पॉइंट, टेक एनी क्वाड्रिलेटरल से ए बी सी डी, सो divide it into 2 triangles and draw the diagonal, drawing a diagonal, and you get the 6 angle 1 2 3 4 5 and 6, and use the angle sum property of the triangle and argue how the sum of measure angle A, angle B, angle C and angle D amounts to 180 degree plus 180 degree as equal to 360 degree, right? तो यहाँ पर जनरली हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट फिगर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो है दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, राइट। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, और ABCD में हमने यहाँ पर जब AC डायगोनल को बनाया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था 2 ट्रेंगल्स में डिवाइड हो गया। एंड वी विल ऑल्सो हैव द 6 एंगल्स, यहाँ पर हमको 6 एंगल मिले, और अगर इन 6 एंगल्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, सो वी विल गेट देयर सम दैट इज इक्वल टू 360। यहाँ पर हमको वो उसका सम जो होगा वो 360, बिकॉज ट्रेंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सपोज इफ़ वी हैव द ट्रेंगल ADC, ये जो ट्रेंगल होगा इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंड इफ़ वी हैव द ट्रेंगल ABC, राइट, दिस ट्रेंगल, तो इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इफ़ वी ऐड दिस वैल्यूज, सो वी विल गेट 360। यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 360 डिग्री, राइट। सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास कोई भी हो तो उसके अंदर 4 एंगल होते हैं, और उन चारों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका सम 360 के बराबर होता है। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर स्क्वायर होता है, उसके अंदर रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम, राइट। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ द काइट, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेपेजियम इज ऑल्सो द क्वाड्रिलेटरल। तो अलग अलग तरह के जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगी वो बहुत ही काम आने वाली है, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट वी कैन सी दैट टेक 4 congruent card board copies of any quadrilateral ABCD with angles as shown in the figure 3.5, right. Arrange the copies as shown in the figure, right. Arrange the copy as shown in the figure where angles 1, 2, 3 and 4 meet at a point, right. So as you can see the figure, they are saying that take the 4 congruent card which area is equal, और उनको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर दें तो हमको यहाँ पर ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, राइट। तो इस तरीके का यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द 1 कार्ड, राइट। और उसी के तरह के हमने यहाँ पर अलग अलग कार्ड लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इफ़ वी जॉइन दिस कार्ड, सो वी विल हैव दिस पॉलीगॉन। तो यहाँ पर हमको ये जो पॉलीगॉन मिल रहा है, इसमें जितने भी एंगल है, एंगल 1, 2, 3, 4, राइट, इसको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें, है ना, तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, उसका एंगल की डिग्री मिलने वाली है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द एंगल सम प्रॉपर्टी बाय दिस एग्जांपल, राइट। सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल यू कैन काउंट द साइड्स। यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में हम साइड भी काउंट कर सकते हैं, जैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कितनी साइड है, दैट इज द 1 साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो दिस इज एग्जैक्टली द ऑक्टागॉन, राइट। ये हमारा एक ऑक्टागॉन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये एक रेगुलर हमारा पॉलीगॉन नहीं है, बट इरेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। सो वी कैन ऑल्सो हैव द सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दैट पॉलीगॉन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल नंबर 3 and 4, राइट। यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम एंड दिस इज ऑल्सो द पॉलीगॉन, राइट। तो ये जो पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन को अगर आप देख रहे होंगे तो ये पॉलीगॉन जो है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन है,
बिकॉज द डायगोनल इज कमिंग आउटसाइड एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन. तो यहाँ पर ये पॉलीगॉन है, राइट. सो इन दिस वे, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, you will be able to do the exercise 3.1, right. And definitely you will get the PDF also, PDF, and you have to try with yourself. In the 3.1 you have the different types of question, just like you can see the question number 1 given here. There are some figures and you have to classify each of them on the basis of the following, right. On the basis of the simple curve, on the basis of the simple closed curve, on the basis of the polygon, on the basis of the convex polygon and the concave polygon, right. So all the terminologies and all the meanings that we have learned in the introduction part of this chapter in this part, right. So you can do this example exercise at your home and just write down the solution into the fair book. First you have to do in the rough book and then you have to note it down into the fair book, right. तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस पार्ट में इस एक्सरसाइज को यहाँ पर हम करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, एंड यू विल ऑल्सो गेट द PDF ऑफ दिस, एंड आप इसको ट्राई कीजिए और फिर आप इसको यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, राइट. सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो बताई है वो भी आपको समझ में आई होगी. सो यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीगॉन एंड द शेप्स ऑफ द पॉलीगॉन टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.1, right. So thank you very much for watching this video. Keep learning, keep watching, keep enjoying the mathematics. Thank you very much. Have a nice day.